اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج جس موضوع پر میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس امتحان میں کامیابی کے مرحلے کیسے ہیں اور اس امتحان میں کامیابی کی شرائط کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان کے لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس امتحان کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے امتحان کے لیے، اپنی آزمائش کے لیے، اپنی پرکھ کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہے، اور اس غرض کے لیے وہ لوگوں کی سوچ کا، ان کے ذہن کا، ان کی سمجھ بوجھ کا، ان کی دانائی کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ لوگ بغیر دیکھے مجھ کو، میرے نبیوں کو، میری بھیجی ہوئی کتابوں کو، میرے فرشتوں کو، میری جنت کو، میری دوزخ کو، میری جزا کو، میری سزا کو بغیر دیکھے پہچان لیتے ہیں، بغیر دیکھے ان کے اندر محض اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جو کائنات کے اندر ہے، جو انسان کے اندر ہیں، ان کو دیکھ کر اس بات کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں کہ ہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں نے جو پیغام دیا وہ سچا ہے اور آخرت یقیناً برپا ہونی ہے۔ تو اس امتحان میں جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، جسے عقل کا امتحان بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھ بوجھ کا امتحان بھی کہہ سکتے ہیں، اور جسے انسان کی ذہنی صلاحیت کا امتحان بھی کہہ سکتے ہیں، جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پارٹی کے لیے، اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد امتحان کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ جس مقصد پر ایمان لے کر آیا ہے اس کے لیے عملی اطاعت کے لیے بھی تیار ہے کہ نہیں ہے، جو اس کے اخلاقی تقاضے ہیں ایمان لانے کے، ان پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں ہے۔ اس دوسرے مرحلے میں انسان کی عقل کے ساتھ ساتھ، اس کی سمجھ کے ساتھ ساتھ، اس کی دانائی کے ساتھ ساتھ، اس کی اخلاقی اور اس کی روحانی طاقت کا بھی امتحان لیا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ سچائی اور نیکی کو جان کر ارادتاً اسے قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور جھوٹ کو اور بدی کو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ارادتاً سمجھ لیتا ہے اور پھر اس پر عمل نہیں کرتا، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ بن کے رہتا ہے یا اس کی بندگی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ اس دوسرے مرحلے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات یا اپنے باپ دادا کی تقلید یا اپنی خاندانی رسموں کا یا دنیا کے عام خیالات اور طریقوں کا غلام بنتا ہے۔ اس میں اگر ایک کمزوری نہیں ہوتی کہ ایک چیز کو خدا کی ہدایت کے خلاف پاتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ بری ہے، مگر پھر بھی اس کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اور دوسری چیز کو جانتا ہے کہ خدا کے نزدیک وہی حق اور پسندیدہ ہے، مگر اس پر بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ اس امتحان میں جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی پارٹی سے اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور صرف ان لوگوں کو چنتا ہے جن کی تعریف یہ ہے کہ جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ یعنی خدا کی ہدایت کے خلاف جو راستہ اور جو طریقہ بھی ہو، اسے وہ جرات کے ساتھ چھوڑ دیں، کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، خواہ اس پر کوئی ناراض ہو یا خوش۔ ابھی تک جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امتحان کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے میں انسان کی سمجھ کا، اس کی دانائی کا، اس کی حکمت کا، اس کی ذہنی صلاحیت کا امتحان لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو، اس کی کتابوں کو، اس کے نبیوں کو، آخرت کو، فرشتوں کو بغیر دیکھے مانتا ہے، اپنی
समझ बूझ के मुताबिक, अपनी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक जस्तजू करके अल्लाह की निशानियों को कायनात में देखकर, अपने जिस्म में देखकर वो इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि हाँ, ये सब कुछ सच है और मुझे नबियों पर और आखिरत पर और आसमानी किताबों पर और रिश्तों पर और तमाम गैबी उमूर पर ईमान लाना चाहिए। और दूसरा मरला यह है कि वो इस ईमान के मुताबिक अपने अंदर वो अखलाकी और रूहानी और साफ़ पैदा करता है जिससे इंसान को अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है और वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचता है। इस दूसरे इम्तिहान के बाद अल्लाह ताला इंसान को तीसरे इम्तिहान में डालता है और वो इम्तिहान होता है इत्आत का, फरमान बरदारी का। अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि जो लोग इस बात के कायल हैं, इस बात का दावा करते हैं कि वो अल्लाह पर ईमान लाए और इस बात के लिए तैयार होने का ऐलान करते हैं कि वो अल्लाह ताला के फरमान बरदार हैं और उसके वो नाफरमानी से बचना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उनको इस इम्तिहान में डालता है कि फिर वाक़या वो मेरी फरमान बरदारी के लिए तैयार भी हैं या नहीं। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला उनको नमाज और रोज़े के अहकामात जारी करता है। दिन में 5 वक्त मुअज़्ज़िन अज़ान के लिए पुकारता है और उस अज़ान के जवाब में अगर वो लब्बैक नहीं कहते, नमाज के लिए वज़ू नहीं करते, नमाज से पहले की शराइत को अंजाम नहीं देते और नमाज के लिए मस्जिद में या अगर मस्जिद में जाने का मौका ना हो घर में नमाज अदा नहीं करते, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अल्लाह ताला की इत्ताअत व फरमान बरदारी के इम्तिहान में नाकाम हो गए। इसी तरह अल्लाह ताला उनको फरमान बरदारी के इत्ताअत के एक और दूसरे इम्तिहान में डालता है जिसका नाम रोज़ा है। उसमें अल्लाह ताला इंसान को इस आज़माइश में डालता है कि वो अल्लाह की रज़ा की खातिर, उसकी खुशनुदी की खातिर सुबह से शाम तक खाने पीने से और नफसानी ख्वाहिशात से परहेज़ करते हैं या नहीं करते। अगर इस इम्तिहान में इंसान नाकाम हो जाए और अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक रोज़े ना रखे और भूख और प्यास बर्दाश्त ना कर सके और नफसानी ख्वाहिशात को एक ख़ास टाइम तक के लिए, सुबह से शाम तक के लिए कंट्रोल ना कर सके, तो अल्लाह ताला उसको इस इम्तिहान में नाकामी की वजह से अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ इस तीसरे इम्तिहान में जो लोग नाकाम होते हैं, अल्लाह ताला उनको अपने पसंदीदा लोगों में शामिल नहीं करते। और अगर जो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएं, फरमान बरदारी के इम्तिहान में, जिसमें नमाज भी शामिल है और रोज़ा शामिल है, अगर इन दोनों अहकामात को लोग कामयाबी के साथ मान लें, तस्लीम कर लें और इस पर अमल करें, तो अल्लाह ताला इनको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर लेते हैं और फिर इनको तीसरे इम्तिहान के बाद चौथे इम्तिहान की दावत देते हैं। वो चौथा इम्तिहान क्या है? वो चौथा इम्तिहान माल की कुर्बानी का इम्तिहान है, जिसमें ज़कात के भी अहकाम आते हैं, सदका खैरात के भी अहकाम आते हैं। अल्लाह ताला के रास्ते में देने के लिए जितने भी इंसान के पास वसाइल हों रिज़्क़ की शक्ल में, वो अल्लाह ताला के रास्ते में वो कुर्बान करने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर एक शख्स अल्लाह पर ईमान का दावा करता है, अल्लाह के रसूलों को मानता है, आखिरत को मानता है, अल्लाह की इताअत का भी इकरार करता है, बुराई से बचने का भी दावा करता है और नेकी के रास्ते पर चलने के लिए भी तैयार है, नमाज की पाबंदी भी करता है, रोज़े के अहकामात पर भी अमल करता है, लेकिन अल्लाह ताला के रास्ते में माल कुर्बान करने के लिए अगर वो तैयार नहीं होता, माली कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होता, अल्लाह ताला के दिए हुए वसाइल ज़िंदगी को, अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ को अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पर ख़र्च करने के लिए तैयार नहीं होता, तन दस्तों की मदद नहीं करता, अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं करता, अपने पड़ोसियों की मदद नहीं करता, ज़रूरतमंदों के काम नहीं आता, अपनी जेब से पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं होता, तो अब वो इस चौथे इम्तिहान में नाकाम हो जाता है। और अगर वो अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ को अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते भी देने के लिए तैयार हो जाए, इस आजमाइश में अगर वो पूरा उतर जाए, जो माल की कुर्बानी का इम्तिहान है, तो अल्लाह ताला उसको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल करता है। अल्लाह ताला ने अपने इम्तिहान में कामयाबी के लिए ये 4 मरातिब रखे हैं। पहला मर्तबा जिसमें इम्तिहान में कामयाबी ज़रूरी है, वो इंसान की समझ का, उसकी अक्ल का, उसकी हिकमत और दानाई का मरहला है।
इस मरहले में जो कामयाब होते हैं अल्लाह ताला उनको दूसरे इम्तिहान में डाल देता है, और वो इम्तिहान इंसान की अखलाकी क़ुव्वत का इम्तिहान होता है, और जिसमें ये देखा जाता है कि वो अल्लाह ताला की बताए हुए सीधे रास्ते पर चलता है या नहीं चलता, जिन कामों से अल्लाह ने मना किया है उन कामों से रुकता है या नहीं रुकता, और जिन अहकामात का अल्लाह ताला ने उसे शऊर दिया है, हदायत की है, उन पर वो चलता है या नहीं चलता। जिस इम्तिहान में जो लोग कामयाब हो जाते हैं फिर अल्लाह ताला उनको एक तीसरे इम्तिहान में डालता है जिसका नाम है फरमान बरदारी और इताअत। इस इम्तिहान में भी जब वो कामयाब हो जाता है, यानी वो नमाज की भी पाबंदी शुरू कर देता है और रोज़ों का भी एहतमाम करता है और उनको शऊर के साथ उनकी शराइत के साथ बजा लाता है, तो वो अल्लाह ताला उसको एक चौथे इम्तिहान में डालता है, और वो इम्तिहान माल की कुर्बानी का इम्तिहान है, जिसमें ज़कात के अहकामात भी शामिल हैं, सदका व खैरात के अहकामात भी शामिल हैं, और फिर जुमला वो तमाम अहकामात शामिल हैं जिनको हम माली इबादत कहते हैं, यानी जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को यह हिदायत की है कि उसके बताए हुए रास्तों पर माल खर्च करो। इस माल के इम्तिहान में जो लोग कामयाब होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये जांचने के लिए कि वाक़ईतन वो इस इम्तिहान में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस चीज़ का मुताला करें, सोचें समझें कि उनके अंदर वो मतलूबा और साफ़ मौजूद हैं जो माल अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करने वालों के अंदर होने चाहिए।